Good morning, class. Today we will discuss about the remaining topic of chapter first. Okay. In the previous video, we are discussing about the topics: how can we determine the place value, how can we determine the face value, okay, and how can we write the given numeration in the form of international number system. And I hope that all of you understood very well. Okay, because I will explain in a good way or in a good manner. Okay, so listen the video very carefully one times and two times, then I think that all of you understood what I want to say, what I am explaining regarding to the given topic. Okay, then see here, one most important thing is there. When we are comparing the international number system along with what, along with the international number system, along with the Hindu Arabic number system, okay, then what the comparisons are there, okay, what are the differences are there. 100,000, okay, 100 will be used in the case of international number system. Okay, so 100,000, okay, this will be taken in the form of international number system. तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100,000 जो होता है वो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग किसके बराबर होता है, 1 लाख के बराबर होता है. अंडरस्टूड. 1 मिलियन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 मिलियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, according to the Hindu Arabic number system, 10 lakh. Okay, 10 million, okay, in the case of 10 million, okay, which will be counted in the form of international number system, 10 million, okay, is equal to what, 1 crore. 1 crore is in the form of Hindu Arabic number system. Okay, similarly 100 millions, what, 10 crores, okay, as well as 1 billion is equal to what, 100 crores or 1 arab. Okay, here this is the case of what, Hindu Arabic number system or Indian number system, and this one is the case of international number system. Okay, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 बिलियन किसके बराबर होता है, 100 करोड़. 100 करोड़ ये किसकी वैल्यू है, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम या फिर इंडियन नंबर सिस्टम की वैल्यू है. गॉट इट. Okay class, now after that we will discuss about the things. Okay, how can we determine the value, okay, how can we determine how can we solve the questions. Okay, just see 1 and 2 questions are there. Find the face value and the place value of 5 in number 375 to 8. Okay, firstly you will determine the face value. ठीक है, यहाँ पर फेस वैल्यू हमें किसके लिए निकालनी है, किस डिजिट के लिए निकालनी है, देन यू कैन से सर 5 के लिए निकालनी है. 5 के लिए निकालनी है ना बेटा, तो 5 के लिए हमें फेस वैल्यू निकालनी है और 5 के लिए ही हमें क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू ही निकालनी है. ठीक है, फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू व्हाट, 5. जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, किसी भी नंबर की फेस वैल्यू क्या होती है, द नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर के लिए अगर आप फेस वैल्यू निकालते हैं, देन व्हाट द आंसर, द नंबर इटसेल्फ. So then the face value of 5 is equal to what, 5 is there. Okay, after that you may find out the place value of 5. ठीक है, अब प्लेस वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जिस डिजिट की प्लेस वैल्यू आपको निकालनी है, सबसे पहले आप उस डिजिट की लोकेशन या उस डिजिट की पोजीशन को आप फाइनलाइज करेंगे कि वो डिजिट किस लोकेशन पे आ रहा है या किस पोजीशन पे वो डिजिट आ रहा है. ठीक है, 1s पे आ रहा है, 10s पे आ रहा है, 100 पे आ रहा है, 1000 पे आ रहा है, जिस पर भी आएगा. ठीक है, यू आर जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई द गिवन डिजिट. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जिस डिजिट के लिए प्लेस वैल्यू निकालना है उस डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके पर्टिकुलर पोजीशन या लोकेशन से, चाहे वो 100 हो या 1000 हो या एक्सेट्रा कुछ भी हो. ठीक है, तो 5 यहाँ पर कहाँ पे आ जाएगा बेटा, 5 इज स्टैंड एट द लोकेशन और एट द पोजीशन ऑफ व्हाट, 100. ठीक है, तो 5 इंटू 100, 5 इंटू 100 वी गेट 500. क्या आ जाएगा, 500. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. सी द अनदर वन, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 3s इन द नंबर दिस वन. आर यू अंडरस्टूड व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन. ओके, डिफरेंस मीन्स always smaller number will subtracted from the greatest number. डिफरेंस में हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है.
सब्ट्रैक्शन के केस में कुछ भी हो सकता है, बड़े में से छोटा भी हो सकता है, छोटे में से बड़ा भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन के ही केस में अगर आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन सब्ट्रैक्शन विल कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस। ठीक है, देन द सब्ट्रैक्शन विल कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस। अगर सब्ट्रैक्शन के केस में बड़े में से छोटे को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर छोटे में से बड़े को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपका सब्ट्रैक्शन ही होगा। ठीक है, गॉट इट। और बड़े में से छोटे को भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी आपका वो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ही होगा। ठीक है, बट डिफरेंस, अगर डिफरेंस दे दिया गया है तो डिफरेंस का मतलब एक पर्टिकुलर थिंग यहाँ पे आ जाती है, वी ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड द स्मॉलर वन फ्रॉम द बिगर वन। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि फर्स्टली वी फाइनलाइज हाउ मेनी टाइम्स 3 विल कम, देन यू कैन से 2 टाइम्स, देन फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ this first 3 and this second 3. Okay, and after that find out the difference. Okay, what is the place value of this 3? Then you can say ones, tens and 100. 3 into 100 is equal to what, 300. Okay, after that what about the place value of this 3? ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. ठीक है, 1 crore. Okay, then 3 into 1 crore. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 3 करोड़ आ गया। डिफरेंस मीन्स व्हाट, दिस वन इज ग्रेटेस्ट एंड दिस वन इज स्मॉलेस्ट, देन 3 करोड़ माइनस 300, व्हाट वी गेट दिस वन। ओके, सो लाइक दिस वे you will finalize the value. Okay, how can you determine these things? Like this way you will determine. Okay, now after that the next topic is comparison of numbers. Okay, comparison of numbers. Comparison of numbers, you know what is the meaning of comparison? Comparison का मतलब क्या होता है? Comparison means we are just going to compare. Okay, we are just going to compare the numbers. ठीक है, हम numbers को compare करते हैं। ठीक है, means what are the result in the case of comparison? Then we can say which number is greater, which number is smaller, or the next case is either the number is smaller, either the number is greater, and we can say the numbers are being equal. In the case of comparison we have 3 cases. The first one is greater than, the second one is less than, and the third one is equal to. बेटा कंपैरिजन के केस में हमारे पास 3 केसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन बुक में केवल 2 ही केसेस दिए जाते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन। ओके, इन द प्रीवियस क्लास, ओके, ऑल ऑफ यू स्टडी दिस टॉपिक्स, हाउ कैन वी मेक द कंपैरिजन। ओके, लेकिन वहाँ पर जो कंपेयरिंग आपने की थी वो 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर्स के बीच में कंपेयरिंग की थी। ओके, बट हियर वी आर जस्ट गोइंग टू मेक द कंपैरिजन, ओके, बिटवीन 7 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर, ओके, बिटवीन द ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर्स। ओके, मेथड्स आर बीइंग सेम, प्रोसीजर्स आर बीइंग सेम। ओके, देन रिगार्डिंग दिस वी विल फाइनलाइज। ओके, the first method and the simplest method is what? Okay, the first and the simplest method, okay, rule number first, these are the 2 methods. See here, numbers which have less digit are always less than the numbers which have more digit. ठीक है, सबसे पहला मेथड ये होता है कि जिन 2 नंबर्स के बीच में हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है, या जिन 2 नंबर्स के बीच में हम कंपेयरिंग करने जा रहे हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट, उन दोनों ही नंबर्स में हम नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, नंबर विच हैव द लेस डिजिट, वो नंबर जिसमें डिजिट्स की संख्या क्या होती है, कम होती है। ठीक है, नंबर्स विच हैव द लेस डिजिट, ओके, आर ऑलवेज लेस देन द नंबर्स विच हैव द मोर डिजिट। ओके, जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगे वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, और जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, लेस होंगे, वो हमेशा छोटा होगा। दिस इज़ द फर्स्ट मैथड, विच वन इज़ द जनरल मैथड। ओके, एंड दिस मैथड विल बी यूज अर्लियर। ओके, second method, suppose we have to compare 2 numbers having the same number of the digit, then proceed with the following step. Okay, means
टू केसेस आर देयर। इन द फर्स्ट केस, पहले केस में क्या था कि अगर दो नंबर हमारे पास थे तो दोनों नंबरों में हमने देखा एक नंबर बड़ा और एक नंबर छोटा होगा। कैसे हमने फाइनलाइज किया? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डिजिट। जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होंगे वो नंबर बड़ा होगा, जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कम होंगे वो नंबर हमारा क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है। सेकेंड रूल क्या है? सपोज दैट वी हैव टू नंबर्स एंड दीज टू नंबर्स कैन कंसिस्ट सेम नंबर ऑफ द डिजिट। दो नंबर्स हमारे पास हैं और दोनों ही नंबर में दोनों ही नंबर जो है 6 डिजिट नंबर हैं। अगर पहला नंबर 6 डिजिट नंबर है, दूसरा नंबर 7 डिजिट नंबर है, तब तो आप आसानी से कह देंगे कि सर 7 डिजिट नंबर जो होगा वो ग्रेटेस्ट होगा एज कम्पेयर टू द 6 डिजिट नंबर, और यू कैन सी दैट 6 डिजिट नंबर इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द 7 डिजिट नंबर। लेकिन अगर दोनों ही नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो? सेम हो। ठीक है। then what we can do and how can we compare? Okay, then see the first part. First compare the digits at the left place in both the numbers. ठीक है, लेफ्ट प्लेस इन बोथ द नंबर्स। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लेफ्ट में, ठीक है, दोनों ही नंबर्स में लेफ्ट में जो पहला नंबर होगा उसको हम कंपेयर करते हैं। इफ़ दे आर इक्वल इन वैल्यू देन कंपेयर द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर दो नंबर्स हमारे पास हैं और दोनों ही नंबर्स में 6 डिजिट नंबर हैं, ठीक है, तो हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले वाले नंबर में पहला डिजिट हम देखते हैं। ठीक है, दूसरे वाले नंबर में भी हम पहला डिजिट देखते हैं। अगर ये दोनों सेम हो गए, ठीक है, देन वी आर जस्ट गोइंग टू सी द सेकेंड डिजिट। अगर दूसरा डिजिट भी सेम होता है देन वी आर जस्ट गोइंग टू सी द थर्ड डिजिट। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, थर्ड, रिपीट द स्टेप सेकेंड अनटिल यू कम अनइक्वल डिजिट। और इसको हम तब तक रिपीट करते हैं जब तक हमें अनइक्वल डिजिट्स नहीं मिले। अनइक्वल का मतलब सपोज कीजिए पहले वाले नंबर में जो पहला डिजिट था वो 7 था, दूसरे वाले नंबर में भी जो पहला डिजिट था वो भी 7 था। इक्वल हो गए दोनों। ठीक है, तो और दोनों जो है 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, दूसरे वाले में, दूसरे सेकंड केस में, ठीक है, फर्स्ट नंबर में जो दूसरा डिजिट था वो 3 था। ठीक है, सेकंड नंबर में भी दूसरा डिजिट क्या था? 3 था। अगेन बोथ आर बीइंग सेम। अब थर्ड में, थर्ड केस में हम आगे फर्दर जहाँ जहाँ हमें सेम मिलेगा वहाँ वहाँ हम आगे रिपीट करते चले जाएंगे। ठीक है, देन इन द थर्ड केस फर्स्ट नंबर में जो थर्ड डिजिट है सपोज दैट 4, और इन द सेकेंड नंबर द थर्ड डिजिट इज 2। ठीक है, 4 and 2 विच वन इज ग्रेटर? 4 इज ग्रेटर। देन वी कैन से the first number is greater as compared to the second number. Okay, like this way we will finalize. Now see here, for example, which is greater? Firstly, according to the first method, we are just going to count the numbers 1 2 3 4 5 6 7. Here is what? 1 2 3 4 5 6. Okay, this will consist 7 digit number and this will consist 6 digit number. Okay, means what? These two will consist unequal digit number. Okay, then we can say this will consist 7 digit number and this will consist 6 digit number. Then according to the first rule of the comparison of numbers, okay, the number which will consist the greatest digit number is always greater, and the numbers which will consist the smallest digit number is always smaller. Okay, then in that case this number is greater than to this one. या तो आप ये कह दीजिए कि ये नंबर जो होगा इससे बड़ा होगा, या तो फिर ये नंबर क्या होगा? इससे छोटा होगा। ठीक है, गॉट इट। नाउ सी द सेकंड वन। फर्स्टली काउंट द नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, बोथ नंबर्स विल कंसिस्ट 8 डिजिट नंबर। ओके, इन द सेकेंड पार्ट ऑफ the example first, we are seeing that both the numbers will consist equal digit number. Okay, then how can we finalize which one is greater and which one is smaller? This is the question. How can we finalize which number is greater and which number is smaller? Okay, then what the procedure is there? From left. ठीक है, from left means left to right. ठीक है, we are just going to move in this direction. इस डायरेक्शन में हमें मूव करना है। ठीक है, जब हम इस डायरेक्शन मूव करते हैं तो पहला डिजिट देखते हैं, यहाँ पर क्या है? 5 है, यहाँ पर भी क्या है? 5 है। बोथ आर बीइंग सेम। ओके, देन अगेन अगर सेम है तो हम नेक्स्ट नंबर पे फॉरवर्ड हो जाते हैं 6,
then here is what 6, ये भी same है. Okay, 8, then again here is what 4. Now see here in the third digit, okay, in the first number we have 8 or in the second number we have 4. Okay, then we are comparing 8 and 4, which one is greater? Then you can say that sir 8 is greater. Okay, 8 is greater. Okay, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट नहीं होता, अगर यहाँ पर भी सेम हो जाता तो हम नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं. ठीक है, बट हियर 8 is greater, then this number is greater than this one, or this one is smaller than this one. Okay, either you can say this number is greater than this one, or you can say that this number is smaller than this one. Okay, so like this way we are making the comparisons. Okay, suppose that if all the numbers of digits, suppose the first digit number, this one is same like this one, second here is 6 and here is 6, here is 8, here is 8, here is 9, here is 9, here is 0, here is 0, here is 2, again here is 2, here is 3, again here is 3, here is 7, and here is a means when two numbers can consist equal digit numbers and all the digits are being same, then in that case which type of comparison is there? Then we will use the equal to sign. Got it? तो इस कंडीशन में जो कंपेरिजन होगा वो क्या होगा? इक्वलिटी का कंपेरिजन होगा. ठीक है, और वहाँ पर हम इक्वल साइन को यूज़ करेंगे. ओके क्लास, एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. ओके क्लास, थैंक यू.